ترکی کے اسلام آباد دھماکے کی شدید مذمت، قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی ٹیلی فون پر گفتگو۔ اسحاق ڈار کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے غیر متزلزل عزم اور شہریوں کے تحفظ پر زور۔ دونوں رہنماؤں کی دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور اہم علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر بھی گفتگو۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی لنڈی کوتل میں شہید کیپٹن عباس خان کی رہائش کا آمد۔ شہید کے والد اور اہل خانہ سے اظہار تعزیت، فاتح خوانی کی۔ شہید کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت۔ وزیر داخلہ نے قبائلی عمائدین اور مشران سے بھی ملاقات کی۔ وطن کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، دفاع وطن کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ قبائلی عمائدین کی محسن نقوی سے گفتگو۔ سعودی عرب میں آج سے 12 فروری تک ورلڈ ڈیفنس شو کا انعقاد۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف شرکت کے لیے سعودی عرب کے سرکاری دورے پر ریاض پہنچ گئے۔ اعلیٰ سعودی حکام اور پاکستانی سفیر نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ وہ سعودی حکومت کی باضابطہ دعوت پر یہ دورہ کر رہے ہیں۔ دورہ دو طرفہ مضبوط تعلقات کو مزید فروغ دینے میں معاون ثابت ہوگا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے اسٹریٹجک دفاعی تعلقات میں تاریخی پیش رفت۔ سعودی عرب میں ہونے والے ورلڈ ڈیفنس شو میں آئیڈیاز 2026 کی سپیس لانچ کی جائے گی۔ انعقاد پاکستان میں نومبر 2026 میں کیا جائے گا۔ عالمی روابط کے فروغ میں ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن کا مؤثر کردار۔ پاکستان کا عالمی سطح پر بڑھتا ہوا دفاعی وقار مزید مستحکم ہو رہا ہے۔ پارلیمان عالمی مکالمے اور اعتماد سازی میں مرکزی ستون، پاکستان مالدووا تعلقات میں نیا سنگ میل۔ اعزازی قونصل خانے کا قیام تعاون کی نئی راہیں کھولے گا۔ بین الپارلیمانی سپیکرز کانفرنس پاکستان کے عالمی سفارتی ویژن کی عکاس ہے۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا دبئی میں تقریب سے خطاب۔ پارلیمانی سفارتکاری عالمی امن اور پائیدار شراکت داری کے لیے ناگزیر قرار۔ سیکیورٹی اداروں کی زبردست کامیابی، طلائی خودکش دھماکے میں ملوث تمام کردار 24 گھنٹے کے اندر گرفتار۔ پشاور اور نوشہرہ سے خودکش حملہ آور کے 4 سہولت کار گرفتار اور داعش کا افغان ماسٹر مائنڈ بھی پکڑ لیا گیا۔ حملے کی منصوبہ بندی، تربیت اور ذہن سازی افغانستان میں کلعتم دہشت گرد تنظیم داعش نے کی۔ آپریشن کے دوران دھرتی کے سپوت، مادر وطن پر قربان، 3 زخمی۔ گورنر پنجاب سلیم حیدر کا طلئی کلاں اسلام آباد میں مسجد اور امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ کا دورہ۔ امام مسجد علامہ بشارت حسین امامی نے گورنر کو دھماکے سے متعلق آگاہ کیا، شہداء کے لیے دعا بھی کرائی۔ مسجدوں میں دھماکہ کرنے والوں کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، عبادت گاہوں میں سجدہ ریز مسلمانوں کو نشانہ بنانے والوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا۔ گورنر سردار سلیم حیدر۔ چین کی اسلام آباد میں خودکش دھماکے کی شدید مذمت۔ افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین سے اظہار ہمدردی۔ زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ قومی سلامتی اور استحکام اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پاکستان کی بھرپور حمایت کا اعادہ۔ انتہا پسندی کا گڑھ افغانستان، عالمی امن کو سنگین خطرات لاحق۔ طالبان حکومت عالمی برادری کے نزدیک ناقابل اعتماد قرار۔ روسی تجزیہ کاروں نے طالبان کی سخت گیر پالیسیوں کو ناکام حکمرانی کی علامت قرار دے دیا۔ طالبان کا سیاسی طرز عمل خطے میں بدامنی اور دہشت گردی کو ہوا دے سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق افغانستان میں بڑھتی انتہا پسندی طالبان حکومت کے ممکنہ خاتمے کا پیش خیمہ۔ بیرون ممالک میں بھارتی نژاد مجرموں سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات۔ بھارتی شہریوں کی گرفتاریوں، تحقیقات اور ملک بدری میں خطرناک اضافہ۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق امریکی امیگریشن ڈیٹا بیس کی ہائی پرائیورٹی فہرست میں 89 بھارتی نژاد مجرم شامل۔ لاقانونیت، سماجی عدم استحکام اور متنازع عدالتی نظام نے بھارت کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ جاپان اور تھائی لینڈ میں عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری۔ جاپان کے ایوان زیریں کی 465 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے، جبکہ 176 ارکان کا انتخاب 11 علاقائی متناسب نمائندگی کے ذریعے کیا جائے گا۔ تھائی لینڈ میں بھی عام انتخابات کے لیے پولنگ کا آغاز۔ انتخابات میں ترقی پسند، اصلاح پسندوں اور فوج کے حمایت یافتہ قدامت پسندوں کے درمیان سخت مقابلہ۔
भारत से चलने वाली आलूदा हवा के बायस लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 243 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी के हॉट स्पॉट्स की निशानदही के लिए मसनूई जहानत का निजाम फाल। डिजिटल मैपिंग और ड्रोन से सनती और ट्रैफिक अखराज की निगरानी। माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने और बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। शहरी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करके इज्तिमाई सफर को तरजीह दें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। आज से 10 फरवरी के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, एबटाबाद, वादी नीलम, स्कर्दू, नारान, कागान और सवात में बर्फबारी से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का खदशा। सयाहों को महतात रहने और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप चेन्नई में चौथा मैच। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। दिन 2:30 बजे इंग्लैंड और नेपाल की टीमें मुंबई में आमने सामने। शाम 6:30 बजे कोलंबो में श्रीलंका और आयरलैंड के दरमियान मुकाबला होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 हैदराबाद में पीएसएल की नई फ्रेंचाइज की तकरीब रुनुमाई। नई टीम का नाम मुतारिफ कराया गया। फ्रेंचाइज का नाम हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन रखा गया। सोशल मीडिया पोस्ट में हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्समैन का लोगो भी जारी कर दिया गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ क्रिकेट सीरीज। पाकिस्तान विमेंस टीम जोहान्सबर्ग पहुंच गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की खवातीन टीमों के दरमियान 3 T20 और 3 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज का आगाज 10 फरवरी को पोचेस्ट्रोम में T20 मैच से होगा। ऑस्ट्रेलिया में प्रो हॉकी लीग का दूसरा मरहला। होबार्ट में पाकिस्तानी हॉकी टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया। खिलाड़ी फिजिकल फिटनेस पर तवज्जो देते हुए रनिंग करते नजर आए। प्रो हॉकी लीग का दूसरा राउंड 10 से 14 फरवरी तक होबार्ट में होगा। पहले मैच में पाकिस्तान का मुकाबला मेजबान मुल्क ऑस्ट्रेलिया से होगा। और स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में रियल सोसिएडाड की एल्चा को शिकस्त। रियल सोसिएडाड ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी समेटी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। खबरनामे का आगाज करेंगे। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इस्हाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। गुफ्तगू के दौरान तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने सदर रजब तैयब एर्दोगान और बरादर तुर्क अवाम की जानिब से इस्लामाबाद में होने वाले बम धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिली तासियत का इज़हार किया। नायब वज़ीर आज़म ने तुर्क क़यादत की जानिब से इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के अहद का इयादा किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लंडी कोतल में शहीद कैप्टन अब्बास खान की रिहाइश गाह गए और शहीद के वालिद और अहल खाना से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन अब्बास के साले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की। इस मौके पर आईजी फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ भी वज़ीर दाखिला के हमरा थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने शहीद कैप्टन अब्बास को ज़बरदस्त अल्फाज में ख़राज अक़ीदत पेश किया और कहा कि आप जैसे पुरअज़्म वालिद का हौसला ही कौम का जज्बा बढ़ाता है। आपके बुलंद आज़म को पूरी कौम सलाम पेश करती है। शहीद कैप्टन अब्बास के वालिद ने कहा कि मुझे बहादुर बेटे की शहादत पर बहुत फ़ख्र है। वतन के लिए मेरा हर बेटा हाजिर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कबायली अमायदीन और मशरान से भी मुलाकात की। कबायली अमायदीन और मशरान ने मुसल्लह अफवाज का हर कीमत पर साथ देने का ऐलान किया। कबायली अमायदीन ने कहा कि शहीद कैप्टन अब्बास के नक्शे कदम पर चलेंगे, दिफाए वतन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस अज़्म का याद भी किया कि वतन की सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे।
सऊदी अरब में आज से 12 फरवरी तक वर्ल्ड डिफेंस शो का इनेकाद किया जा रहा है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ शिरकत के लिए सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर रियाद पहुंच गए हैं। आला सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफीर ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वो सऊदी हुकूमत के बाज़ाब्ता दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। दौरा दो तरफा मजबूत ताल्लुकात को मजीद फरोग देने में मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक दिफाई ताल्लुकात में एक और तारीखी पेशरफ्त सामने आई है। रियाद में मुनक़दा वर्ल्ड डिफेंस शो के मौके पर पाकिस्तान की आलमी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की स्पेस लॉन्च की जाएगी। रियाद में 8 से 12 फरवरी 2026 तक जारी रहने वाले वर्ल्ड डिफेंस शो में दुनिया भर के ममालिक अपनी जदीद तरीन फौजी टेक्नोलॉजी और दिफाई साजो सामान पेश करेंगे। पाकिस्तान में आइडियाज़ 2026 का इनेकाद रवां साल नवंबर 2026 में किया जाएगा। इस इक़दाम से पाकिस्तान को अपनी दिफाई मसनूआत आलमी मार्केट में मुतारिफ कराने का बेहतरीन मौका मिलेगा। पाक सऊदी दिफाई ताउन के साथ साथ दीगर बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ भी मुश्तरका दिफाई पैदावार की राह हमवार होगी। नुमाइश का मकसद जदीद तरीन जंगी आलात और दिफाई निज़ाम की तैयारी में खुद इन्हिसारी हासिल करना है। दुबई में जमहूरिया मोल्दोवा के एजाज़ी कौंसल बराए पाकिस्तान में शहीद कासिम अली की तकर्री के मौके पर एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिससे चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि पार्लियामान आलमी मुकालमे, एतमाद साजी और बैनुल-अक़वामी ताउन के फ़रोग़ में एक मरकज़ी सुतून की हैसियत रखती है। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने पाकिस्तान और मोल्दोवा के ताल्लुकात में एजाज़ी कौंसल खाने के क़याम को एक नया संग मील करार देते हुए कहा कि इक़दाम दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन की नई राहें खोलेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्लिमानी सिफारतकारी आलमी अमन, इस्तेहकाम और पायदार शराकतदारी के लिए नागुज़ीर है। चेयरमैन सेनेट ने तिजारत, ज़राअत, दिफा, सेहत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में मोल्दोवा के साथ ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पार्लिमानों के माबैन मजबूत रवाबित आलमी इस्तेहकाम और तवील मुद्दती ताउन की बुनियाद बनते हैं। उन्होंने कहा कि इंटर पार्लियामेंट्री स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के आलमी सिफारती विजन की अक्कास है, जबकि कंबोडिया में दूसरी ISC कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान पार्लिमानी ताउन की बढ़ती हुई आलमी अहमियत का वाज़ेह सबूत है। तकरीब से खिताब करते हुए सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि एजाज़ी कौंसल खाना पाकिस्तान और मोल्दोवा के दरमियान दोस्ती और शराकतदारी का एक मजबूत पुल साबित होगा। उन्होंने इस अज़्म का इआदा किया कि पाकिस्तान फ़ाल पार्लिमानी सफारतकारी के जरिए आलमी बिरादरी में मुस्बत और मौसर किरदार अदा करता रहेगा। चीन ने तड़ाई खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया है। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इस्लामाबाद के धमाके और उसके नतीजे में होने वाले भारी जानी नुकसान पर शदीद सदमा है। चीन इस हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इज़हार करता है। हमारी हमदर्दियाँ ज़ख्मियों और लवाहिकीन के साथ हैं। तर्जुमान के मुताबिक चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है और कौमी सलामती और इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ और अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की भरपूर हिमायत करता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने तलाई कलाम मस्जिद और इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में खुदकुश हमले की जाए वक़ुआ का दौरा किया। मस्जिद और इमाम बारगाह के इमाम राजा बशारत हुसैन इमामी ने गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान को धमाके से मुतालिक आगाह किया और शहीद होने वालों के लिए दुआ करवाई। गवर्नर पंजाब का इस मौके पर कहना था कि मस्जिदों में धमाका करने वालों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इबादत गाहों में सजदा रेज मुसलमानों को निशाना बनाने वालों को इबरत का निशान बनाया जाएगा। इमाम बारगाह में खुदकुश हमले की जितनी मजम्मत की जाए कम है। उनका मजीद कहना था कि फ़ौज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों और सहूलतकारों को मंतक अंजाम तक पहुँचाएंगे। गम की इस घड़ी में शहादा और जख्मियों के खानदानों के साथ खड़े हैं। इमाम मस्जिद और इमाम बारगाह राजा बशारत इमामी ने कहा कि इतना जुल्म होने के बावजूद सब्र का दामन थामे हुए हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमत शहादा और जख्मियों के लिए फौरी माली मुआवनत का ऐलान करें। चेयरपर्सन वज़ीर आला शिकायत सेल मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन टीम पंजाब रिटायर्ड ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन ने कहा है कि पंजाब में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के तारीखी इक़दाम की बदौलत सूबा एक मुस्बत तब्दीली की तरफ तेजी से गामज़न है। शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कमर इकबाल डार और मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन ज़िला शेखुपुरा की सदर बिनिश कमर डार की रिहाइशगाह पर मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातों के बाद मीडिया से बात करते हुए ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन का कहना था कि पंजाब आज दूसरे सूबों के लिए एक काबिल तकलीद मिसाल बन चुका है। अगर दूसरे सूबों में भी पंजाब जैसे इक़दाम उठाए जाएं तो पाकिस्तान का शुमार तेज़ी से तरक्की करने वाले ममालिक में होगा। उन्होंने इस्लामाबाद में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की और जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत किया।
चेयरमैन पीटीआई नजरियाती अख्तर इकबाल डार कहते हैं कि हमें अपने सिक्योरिटी इदारों पर फख्र है जिन्होंने महज चंद घंटों के अंदर इस्लामाबाद खुदकुश धमाके के मास्टरमाइंड और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार किया। शेखपुर ऑफिस से जारी अपने बयान में उन्होंने तरलाई इमाम बारगाह में खुदकुश धमाके को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि इस वक्त हर आंख अश्कबार है और शहदा के वरसा के गम में पूरी कौम बराबर के शरीक है। उनका कहना था कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है बल्कि ये इंसानियत के नाम पर धब्बा है। अख्तर इकबाल डार का कहना था कि पूरी कौम अपनी अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के शाना बशाना खड़ी है। वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के कायदीन सदर मौलाना मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी, सीनियर नायब सदर मौलाना अनवारुल हक, नाज़िम आला वफाकुल मदारिस मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी और दीगर ने इस्लामाबाद इमाम बारगाह में होने वाले खुदकुश हमले को अफसोसनाक और काबिल मजम्मत करार दिया। उन्होंने कहा कि बेगुनाह लोगों की जान लेने और खून बहाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। मसाजिद, इमाम बारगाहों और मदारिस में ऐसी वारदातें करने वाले इंसान कहलाने के मुस्तहिक नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी खूनरेज कार्रवाइयाँ पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के मुतरादिफ हैं। वफाकुल मदारिस के कायदीन ने कहा कि इस खूनरेज और जालिमाना कार्रवाई में मुलव्विस अनासर के नेटवर्क का सुराग लगाकर उन्हें निशान इबरत बनाया जाएगा। उन्होंने मुतालबा किया कि मुल्क भर की तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों और मदारिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए। तरलाई कलां इमाम बारगाह में जुमे की नमाज के दौरान खुदकुश हमले में शहीद होने वाले गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के इंस्पेक्टर बहादुर अली को पूरे सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद का नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई। इस मौके पर पुलिस के चाको चौबत दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। पुलिस लाइन स्कर्दू से शहीद के जसद खाकी को इमामिया जामिया मस्जिद लाया गया, जहाँ पर दोबारा नमाज जनाजा अदा करने के बाद बहादुर अली को हुसैन नगर के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इस्लामाबाद में नमाज जुमा के दौरान इमाम बारगाह पर होने वाले दहशतगर्द हमले में शहीद होने वालों में से 3 शहदा के ताल्लुक जिला मरी के गांव बमरूट सैयदा से था। शहदा की नमाज जनाजा उनके आबाई गांव में इंतहाई रंजो गम की फ़ज़ा में अदा की गई, जिसमें अहले इलाका, मुअज़्ज़िज़ीन और बड़ी तादाद में सोगवार अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने शहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार किया। इस अज़्म का इआदा किया गया कि दुख की इस घड़ी में ज़िला इंतज़ामिया को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। आलमी मुहक्किकीन और तज्ज़ियाकारों ने अफगानिस्तान को इंतहा पसंदी का मरकज़ करार देते हुए इसे आलमी अमन के लिए संगीन चैलेंज करार दिया है। आलमी हलकों के मुताबिक तालिबान हुकूमत नाकाबिल एतमाद और खत्ते की सलामती के लिए एक बड़ा खतरा बनती जा रही है। अफगान जुरीदी अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक आलमी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मौजूदा तालिबान हुकूमत गैर मुस्तहकम है और वक्ती इक़्तिदार पर कायम है। सीनियर रूसी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक तालिबान की पॉलिसियाँ गैर पायदार हुक्मरानी और बढ़ती अवामी बेचैनी की अक्कास हैं। सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी ईरानी स्टडीज़ के डायरेक्टर रजब सफ़ारूफ का कहना है कि तालिबान का ख़राब सियासी तर्ज़-ए-अमल उन्हें ज़्यादा अरसा इक़्तिदार में नहीं रख सकेगा, क्योंकि ये गिरोह ऐसे माहौल में परवान चढ़ा है जहाँ इंतहा पसंद इक़दामात को फ़रोग़ दिया जाता है। रूसी मुहक्किक आंद्रे सेरेंको के मुताबिक तालिबान बुनियादी तौर पर तब्दील नहीं हुए बल्कि पहले से ज़्यादा नाकाबिल एतमाद हो चुके हैं। आलमी तज्ज़ियाकारों ने खबरदार किया है कि तालिबान हुकूमत खत्ते में अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के फैलाव का सबब बन सकती है, जबकि सख्त गिर पॉलिसियों ने उनके इक़्तिदार के खात्मे के खदशात को मजीद बढ़ा दिया है। बैरून ममालिक भारतीय निगरान अफराद से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं, जहां मुख्तलिफ ममालिक में गिरफ्तारियां, तहकीकात और मुल्क बदरी के वाक़यात में तशवीशनाक इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक अमरीकी इमिग्रेशन डाटाबेस में आला तरजीही मुजरमाना केसेस की फहरिस्त में 89 भारतीय नजाद अफराद शामिल पाए गए हैं। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी ने अपनी वेबसाइट पर इन अफराद के नाम और जराइम की तफसीलात भी जारी कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नजाद अफराद पर जिनसी जराइम, मुनशियात स्मगलिंग, फ्रॉड, अगवा, मनी लॉन्ड्रिंग और तशद्दुद जैसे संगीन इल्ज़ामात आयद हैं। दूसरी जानिब इंडियन एक्सप्रेस ने इंकशाफ किया है कि 2025 के दौरान अमरीका से 3800 गैर कानूनी भारतीय शहरियों को मुल्क बदर किया गया। तज्ज़िया निगारों का कहना है कि भारत में बढ़ती लाकानूनियत, समाजी अदम इस्तेहकाम और मुतनाज़ अदालती निज़ाम आलमी सतह पर भारतीय मुआशरे की साख को मुतासर कर रहा है, जबकि मोदी हुकूमत इंतहा पसंद बयानिया के जरिए इक़्तिदार मजबूत करने में मसरूफ़ है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर अमरीका के सामने पसपाई इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। कांग्रेस के मुताबिक एप्स्टीन फाइल से जुड़े मुबैना दबाव और अमरीकी धमकियों के बायस भारत ने हालिया तिजारती मुआहदे में कौमी मौक़िफ़ से इन्हिराफ किया। अपोजिशन का कहना है कि रूस से सस्ता तेल खरीदने पर अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से 25% इजाफी टैरिफ आयद किया गया, जिसके बाद मोदी हुकूमत ने रूसी तेल की खरीदारी में कमी की। कांग्रेस के मुताबिक ये फैसला सिर्फ वक्ती नहीं बल्कि भारतीय मईशत और खारजा पॉलिसी पर तवील मुद्दती मनफी असरात डालेगा। माहिरीन का कहना है कि
امریکی دباؤ کے سامنے بھارت کا خود مختاری کا بیانیہ کمزور پڑ چکا ہے اور خارجہ پالیسی حقیقت پسندی کی بجائے نظریاتی نعروں کی اسیر بنتی جا رہی ہے۔ ناظرین، قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ان دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے دوران خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے مسقط میں امریکہ اور ایران کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا خیر مقدم کیا۔ انہوں نے سفارتی ذرائع سے اختلافات پر قابو پانے کے لیے دوست ممالک کے ساتھ ہم آہنگی جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ جاپان اور تھائی لینڈ میں عام انتخابات کے لیے پولنگ جاری ہے۔ شدید سردی اور برف باری کے باوجود لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق جاپان کے ایوان زیریں کی 465 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہو رہی ہے، جبکہ 176 ارکان کا انتخاب علاقائی متناسب نمائندگی کے ذریعے کیا جائے گا۔ یہ انتخابات وزیر اعظم سنائی تائیکائچی کی جانب سے قبل از انتخابات ہو رہے ہیں۔ پولز کے مطابق توقع ہے کہ حکمران اتحاد ایک فیصلہ کن جیت حاصل کر لے گا۔ اعداد و شمار کے مطابق حکمران اتحاد ایوان زیریں کی 465 نشستوں میں سے 300 تک حاصل کر سکتا ہے۔ تھائی لینڈ میں بھی عام انتخابات کے لیے پولنگ ہو رہی ہے۔ پارلیمنٹ کی 500 نشستوں پر ترقی پسند، اصلاح پسندوں اور فوج کے حمایت یافتہ قدامت پسندوں کے درمیان سخت مقابلہ ہے۔ الیکشن میں 50 سے زائد جماعتیں میدان میں ہیں، لیکن صرف 3 پارٹیاں پیپلز پارٹی، بھوم جائی تھائی اور پو تھائی کے درمیان مقابلہ ہے۔ انتخابی سروے کے مطابق کسی ایک جماعت کو واضح اکثریت ملنا مشکل ہے، جس کی وجہ سے اتحادی حکومت بننے کے امکانات زیادہ ہیں۔ کچھ قومی خبروں میں بتائیں گے۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری سے وزیر ثقافت اور قومی ورثہ اورنگزیب خان کھچی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں بحری ورثے کے تحفظ، فروغ اور اس سے وابستہ تاریخی اثاثوں کے تحفظ کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ گفتگو کے دوران جنید انوار چودھری کا کہنا تھا کہ ساحلی علاقے، قدیم بندرگاہیں اور سمندری راستے قومی اثاثے ہیں۔ بحری ورثہ تعلیم، سیاحت اور بلیو اکانومی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ساحلی کٹاؤ اور ماحولیاتی تبدیلی بحری ورثے کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ تاریخی بندرگاہوں، لائٹ ہاؤسز اور زیر آب آثار قدیمہ کا تحفظ ناگزیر ہے۔ آنے والی نسلوں کے لیے مینورا جزیرے پر سمندری ورثہ محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ ملاقات کے دوران اورنگزیب خان کھچی کا کہنا تھا کہ بحری تاریخ اور ورثہ قومی ثقافتی شناخت کا ایک اہم حصہ ہے۔ ساحلی ورثے کی نقشہ سازی اور تحقیق سروس کا انعقاد ضروری ہے۔ سمندر قدرتی وسائل کے ساتھ ساتھ مشترکہ قومی ورثہ بھی ہے۔ پاکستان کی فارماسیوٹیکل صنعت میں ایک تاریخی سنگ میل عبور کر لیا گیا ہے، جہاں ہائی نون لیبارٹریز نے عالمی معیار کے جدید پیداواری پلانٹ کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ پیشرفت اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC کے جامع فریم ورک کے تحت ممکن ہوئی ہے، جس کا مقصد صنعت کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ بنانا ہے۔ SIFC کی مؤثر سہولت کاری کے باعث اسپیشل اکنامک زونز میں گرین فیلڈ صنعت کاری کو نئی رفتار مل رہی ہے۔ ہائی نون لیبارٹریز نے حال ہی میں پروجیکٹ فورس کے تحت قائد اعظم بزنس پارک شیخوپورہ میں پہلے FDA اور یورپی یونین معیار کے مطابق گرین فیلڈ پلانٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ یہ توسیع یونٹ جدید، مؤثر اور عالمی معیار کے ادویات کی تیاری کے لیے قائم کیا جا رہا ہے، جس سے مقامی اور عالمی منڈیوں تک پاکستانی ادویات کی رسائی مزید مضبوط ہوگی۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ ملک کی فارما صنعت کی ترقی، برآمدات اور عالمی ساکھ میں اضافے کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ SIFC کی جانب سے خصوصی افراد کو خود مختار بنانے کے مشن کے تحت مظفر آباد میں قائم فری لانسنگ ہب امید کی نئی کرن بن گیا ہے۔ یہ مرکز خصوصی افراد کو ڈیجیٹل مہارتیں سکھا کر باعزت روزگار کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ مظفر آباد کی مریم عبداللہ عزم اور حوصلے کی وہ مثال ہیں جنہیں SCO نے خواب دیکھنے کا نیا حوصلہ دیا ہے۔ مریم عبداللہ کا کہنا ہے کہ پیدائشی معذوری ان کی زندگی کی سب سے بڑی رکاوٹ رہی اور ان جیسے کئی معذور بچے صلاحیتوں کے باوجود کسی پلیٹ فارم سے محروم تھے۔ انہوں نے بتایا کہ SCO فری لانسنگ ہب میں مفت انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کی سہولت فراہم کی گئی، جس سے انہیں سیکھنے اور آگے بڑھنے کا بہترین موقع ملا۔ مریم عبداللہ نے SCO کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جدید کمپیوٹر سینٹر نے ان جیسے افراد کی زندگیاں بدل دی ہیں۔ مریم عبداللہ کی جانب کی طرح ہزاروں خصوصی افراد SCO کے تعاون سے اپنے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کر رہے ہیں۔ یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے ضلع کونسل ہال منڈی بہاؤدین میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر عادل حیدر کا کہنا تھا کہ آزادی کشمیریوں کا بنیادی حق ہے۔
کشمیریوں کی انہوں نے کہا کہ قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ بھارت ظلم و جبر کے ذریعے کشمیری عوام کو آزادی حاصل کرنے سے نہیں روک سکتا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کی قیادت میں حکومت کی کامیاب خارجہ پالیسی کی بدولت عالمی سطح پر کشمیر کا مسئلہ نمایاں طور پر اجاگر ہوا ہے۔ حکومت کی بہترین پالیسیوں نے بھارت کو کشمیر کے حوالے سے اقوام عالم میں تنہا کر دیا ہے۔ پاکستانی عوام کی کشمیری بھائیوں کے ساتھ محبت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب کشمیری اپنی حقیقی آزادی حاصل کریں گے اور کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا۔ سفارت خانہ پاکستان ایتھنز یونان میں یوم یکجہتی کشمیر کے موقع ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی کے اکابرین سمیت صحافی برادری نے شرکت کی۔ سفیر پاکستان یونان عامر آفتاب قریشی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور مدد جاری رکھے گا۔ پاکستان عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم بند کرانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس موقع پر مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کی ڈاکومنٹری بھی دکھائی گئی۔ تقریب میں سعدیہ اظہر اور ڈائریکٹر FIA بلال اسلم خان نے صدر مملکت اور وزیر اعظم کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ PTV نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سفیر پاکستان عامر آفتاب قریشی کا کہنا تھا کہ یونان میں فرینڈز آف کشمیر نے جس طرح مسئلہ کشمیر کو اجاگر کیا، اس پر وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ یونان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو یقین دلاتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پر ہم اپنی سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر پاکستانی سفارت خانے ماسکو میں منعقد ہونے والی تقریب میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمزی، پاکستانی کمیونٹی کے ارکان، طلباء، کاروباری شخصیات، میڈیا نمائندگان اور سفارتی عملے نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سفیر پاکستان فیصل نیاز ترمزی نے کہا کہ بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سب سے پرانا حل طلب تنازع ہے اور یہ خطے میں امن و ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے۔ سفیر نے واضح کیا کہ پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ سیاسی، سفارتی اور اخلاقی سطح پر مکمل طور پر کھڑا ہے اور مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق استصواب رائے میں مثمر ہے۔ تقریب کے دوران کشمیر میں ہونے والے مظالم کو اجاگر کرنے کے لیے ایک ڈاکیومنٹری بھی دکھائی گئی، جبکہ شرکاء نے کشمیری عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کے عزم کا اعادہ کیا۔ منچسٹر کے مقامی ہال میں قونصلیٹ جنرل آف پاکستان منچسٹر کی جانب سے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا، جس میں ممبرز آف پارلیمنٹ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات کے علاوہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید بتائیں گے نمائندہ PTV نیوز منچسٹر راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ مانچسٹر کے مقامی ہال میں قونصلیٹ جنرل آف پاکستان مانچسٹر کی جانب سے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا، جس میں ممبرز آف پارلیمنٹ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی کئی عام شخصیات کے علاوہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے قونصل جنرل آف پاکستان مانچسٹر امتیاز فیروز گوندل، ممبر آف پارلیمنٹ افضل خان، MP ڈیوی ابراہم، لارڈ واجد خان اور دیگر کا کہنا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمان بھیک نہیں، وہ اپنا حق خود ارادیت مانگ رہے ہیں جو کہ انہیں ملنا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے، جسے اب اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہو جانا چاہیے۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں امن کا قیام ممکن نہیں۔ کہ جو آزادی کی تاریخیں ہوتی ہیں یہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لاسٹ ایئر ہماری جنگ انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوئی ہے، اس نے یہ پوائنٹ کلیئر کر دیا ہے کہ جنگ حل نہیں ہے، تو آپ امن کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ یہ میسج دینا چاہتے ہیں دنیا کو اور کشمیریوں کو کہ کشمیر کا یہ مسئلہ بہت دیرینہ ہے، ان کا حق خود ارادیت کا حق ان کو UN کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق ان کو ملنا چاہیے۔ عالمی برادری سے یہ اپیل کروں گا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر بھی عمل کیا جائے۔ ان مقبوضہ کشمیر کے سیاسی رہنماؤں یاسین ملک، آسیہ اندرابی، دیگر ہزاروں کشمیریوں کو نہ صرف رہائی دلوانے کے لیے عالمی عدالت انصاف میں جایا جائے۔ کشمیری مائیں، بہنیں اور جو بزرگ ہیں، جو بچے ہیں، ان کو یاد کریں جنہوں نے بہت سی قربانیاں دی ہیں، جو لائف لانگ انہوں نے کیمپین چلائے ہیں، جنہوں نے جان کی جو قربانی دی ہے کہ کشمیر اپنا ایک سیلف ڈٹرمنیشن وہ ان کو ملے۔ ہم ہمیشہ سے کشمیر کاز کے ساتھ پوری طرح کھڑے ہیں، ان کی صحافتی، سفارتی، تمام ہر طرح کی جو معاونت ہے، جو ان کی سپورٹ ہے، ان کی جو پولیٹیکل سپورٹ ہے، اس کو ہمیشہ گورنمنٹ آف پاکستان نے دیا ہے۔ تنازع کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کو عملی جامہ پہنا کر کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، PTV نیوز، مانچسٹر۔ بھارت میں پاکستان دشمن پالیسی پر سنجیدہ سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ بھارتی رکن پارلیمنٹ ششی تھرور نے انڈین ایکسپریس میں شائع اپنے کالم میں اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کو
मुस्तकिल दुश्मन बनाकर रखने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। शशि थरूर के मुताबिक पाकिस्तान से बातचीत को कमजोरी समझना गलत है और बीजेपी का सख्त और तसादमी मौक़िफ़ खित्ते को गैर महफूज बना रहा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया महज सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक भारत का संजीदा तबका अब मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन को नामुमकिन करार दे रहा है। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, भारत से आने वाली आलूदा हवा के बायस लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 243 रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन के मुताबिक सुबह 10 बजे के बाद हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर फी घंटा तक पहुँचने का इम्कान है। सुबह से AQI में तेज़ी से बेहतरी मुतवक्किल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर स्मोक कंट्रोल के इक़दामात में तेज़ी लाई गई। जदीद डेटा साइंसी मॉडल्स और टेक्नोलॉजी के ज़रिए फ़ज़ाई आलूदगी की मुसलसल निगरानी की जा रही है। स्मोक कंट्रोल रूम और फील्ड टीमें हाई अलर्ट पर हैं, जबकि ड्रोन सर्वेलेंस के ज़रिए फैक्ट्रियों, भट्टों और गाड़ियों की सख्त निगरानी की जा रही है। हुकूमत ने शहरियों से ज़ाती गाड़ियों के कम इस्तेमाल और इज्तमाई सफ़र को तरजीह देने, जबकि बुजुर्गों और मरीजों को गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करने की हिदायत की है। NDMA के नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मुमकिना बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। NDMA के मुताबिक 8 से 10 फरवरी के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बेशतर अजला में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। उधर पंजाब में रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलुम, सरगोदा, मियांवाली, बक्कर, लिया, खुशाब, झंग, नारोवाल और सियालकोट में बारिश, जबकि मरी और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। जनूबी पंजाब में तेज़ हवाओं के साथ यालाबारी भी मुतवक्किल है। NDMA ने खबरदार किया है कि बारिश और बर्फबारी के बायस सड़कों पर फिसलन और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो सकती है। आवाम से गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की गई है, जबकि मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस ये चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। दीगर खबरों में आपको आगाह करेंगे। पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत फैसलाबाद में बावकार तकरीब मुनक़िद की गई। रिपोर्ट करेंगे काशिफ मुनीर। पंजाब धीरानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादियों की तकरीब मुकामी वार्ड की शेखपुरा रोड फैसलाबाद में मुनक्कद हुई, जहां मुस्तहिक खानदानों की बेटियों की बाइज़्ज़त रुखसती को यकीनी बनाया गया। शुरका ने पंजाब धीरानी प्रोग्राम को वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शानदार इक़दाम करार देते हुए कहा, प्रोग्राम का मकसद मुस्तहिक बच्चियों को बाइज़्ज़त आगाज़ जिंदगी फराहम करना और खानदानों का बोझ कम करना है। तकरीब में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सोहेल शौकत भट्ट मेहमान ख़ुसूसी थे। ज़िले इंतजामिया और अरकान सूबाई असम्बली ने भी शिरकत की। इस मौका पर फैसलाबाद के 88 जबकि चिन्होट के 23 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। मैं सलूट पेश करता हूँ CM पंजाब को, जिनके विजन की वजह से धीरानी प्रोग्राम मुमकिन हुआ और हमारा टारगेट है कि 16 फरवरी तक हम अपनी 8000 कलेक्टिव मैरिजेस ओवरऑल कंप्लीट कर देंगे इंशाल्लाह ताला। पंजाब धीरानी प्रोग्राम न सिर्फ मुस्तहिक बच्चियों की बाइज़्ज़त रुखसती को मुमकिन बना रहा है, बल्कि ये समाजी तहफ़्फ़ुज़ और फलाही रियासत के अमली विजन की वाज़ेह मिसाल है। काशिफ मुनीर, PTV न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बसंत के मौके पर हिफाजती SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने पर अहले लाहौर को खराज तहसीन पेश किया है। एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि खुशी है कि लाहौर वालों ने एतमाद की लाज रखी और महफूज बसंत मनाने की मिसाल कायम की। मरियम नवाज के मुताबिक मुकर्ररा साइज और मुकर्ररा पिन्ने के अलावा ममनुआ डोर के इस्तेमाल की कोई इतला नहीं मिली, जबकि धाती तार इस्तेमाल न होने से ट्रांसफार्मर भी महफूज रहे। वज़ीर आला ने कहा कि सेफ बसंत का तसव्वुर दीगर शहरों में भी अपनाया जाएगा और अवाम से बसंत फेस्टिवल के आखिरी दिन भी एहतियात बरतने की अपील की। बसंत का त्यौहार सिर्फ पाकिस्तानियों ही नहीं बल्कि गैर मुल्की सिफारतकारों, शोबिस इंडस्ट्री के सितारों के लिए भी खुशी का बायस बन गया। दिल्ली गेट लाहौर में मुनक़दा बसंत तकरीब में कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नाटली बेकर ने शिरकत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने उनका इस्तकबाल किया। अमरीकी हुकाम, सूबाई वज़रा और सीनियर हुकूमती शख्सियात भी तकरीब में शरीक रहे। शोबिस इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार यासर हुसैन, मीकाल जुल्फ़िकार, जुगन कासिम, मुहिब मिर्ज़ा और दीगर फनकारों ने भी बसंत मनाई। शुरका ने बसंत की बहाली पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया और उसे खुशियों की वापसी करार दिया।
कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी एबटाबाद में इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम को बाज़ाब्ता फ़ाल कर दिया गया है। डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर अहिल कमर के मुताबिक इकदाम यूनिवर्सिटी के इंतजामी निज़ाम को जदीद बनाने, मुलाजमीन के लिए आसानियाँ पैदा करने और इदारे में शफाफियत बढ़ाने की समत में एक अहम कदम है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर या मुख्तलिफ कैंपसेस के दरमियान किसी भी किस्म की फिजिकल फाइल कबूल नहीं की जाएगी। तमाम अफसरान और फैकल्टी मेंबरान इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग सिस्टम के जरिए ही सरकारी मरासले भेजेंगे। इस निज़ाम से न सिर्फ इदारे के अंदर तेज़ी, आसानी और शफाफियत बढ़ेगी, बल्कि तलबा, असातिज़ा और इंतजामिया के दरमियान राबते और काम के मयार में भी खातिर खा बेहतरी आएगी। लाहौर के एक निजी स्कूल में सालाना तकरीब तकसीम इनामात नहायत जोश खरूश से मुनाकिद हुई। तकरीब में तलबा तलबात ने मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम पेश किए, जिनमें खूबसूरत टैबलोज ने हाजरीन से खूब दाद समेटी। स्कूल इंतजामिया के मुताबिक इस तकरीब का मकसद बच्चों की तालीमी और तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करना था। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में असनाद और इनामात तकसीम किए गए। वालिदैन और मेहमानों ने बच्चों की परफॉर्मेंसेस को सराहा और स्कूल की काविशों की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लोधरा में ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। पैरा फोर्स लोधरा ने गोदाम पर छापे मारकर करोड़ रुपए मालियत की गैर कानूनी स्टोर किया गया माल बरामद कर लिया। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला डाहा अपनी रिपोर्ट में। लोधरा में माह रमज़ान के आने से पहले महकमा फूड कंट्रोलर और पैरा फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए मालियत का गैर कानूनी ज़ख़ीरा बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान लोधरा शहर में एक, गीलेवाल के इलाके में 2 जबकि अड्डा हकड़ा में कायम एक गैर कानूनी स्टोर को सील कर दिया गया। इन स्टोर में एशिया खुर्दनोश की बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही थी। तो जैसे कि हमें कल इतलात मौसूल हुई ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, उस सिलसिले में हमने रेड्स किए और वहाँ पर वाकई हमें ज़ख़ीरा अंदोज़ सामान किया हुआ बरामद हुआ, जिसके लिए हमने बरवक्त कार्रवाई की और फौरी तौर पर उनको सील किया। कार्रवाई के दौरान 20,000 किलोग्राम घी, 1500 किलोग्राम कुकिंग ऑयल, 10,750 किलोग्राम मैदा, 4500 किलोग्राम चावल, बड़ी मिकदार में दालें, चीनी और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें बरामद की गई। जब्त की गई चीज़ों की मजमूई मालियत करोड़ रुपए में बताई जा रही है। रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक आने वाले दिनों में भी शहर और देही इलाकों में छापों का सिलसिला मज़ीद तेज़ किया जाएगा ताकि रमज़ानुल मुबारक के दौरान खाने पीने की चीज़ें बिला तातुल और मुनासिब कीमतों पर फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। खानेवाल का सहूलत बाजार आवाम के लिए हकीकी मायनों में खुसूसी रिलीफ का जरिया बनता जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सहूलत बाजार में फ्री होम डिलीवरी सर्विस दी जा रही है। इस सर्विस के तहत शहरी अब घर बैठे रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया सिर्फ एक फ़ोन कॉल पर DC रेट से भी 7% कम की कीमत पर मंगवा सकेंगे। तफसील बताएंगे हसनैन बिन नसीर। खानेवाल का सहूलत बाजार आवाम के लिए हकीकी मायनों में खसूसी रिलीफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर सहूलत बाजार में फ्री होम डिलीवरी सर्विस दी जा रही है। इस सर्विस के तहत शहरी अब घर बैठे रोजमर्रा इस्तेमाल की जरूरी चीजें सिर्फ एक को फोन कॉल पर DC रेट से भी 7% कम कीमत पर मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन है सहूलत बाजार के नाम से, उधर से ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं, अपनी निगरानी में बेहतरीन क्वालिटी जो है वो पैक करवा के भिजवाते हैं और इसका जो ऑर्डर करने का टाइम है वो सुबह 9 बजे से लेकर 3:30 बजे के दरमियान है। सहूलत बाजार में आटा, चीनी, घी, दालें, चावल, सब्जी, फ्रूट, गोश्त, मसाला और दूसरी खाने पीने की चीजें DC रेट से दस्तयाब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी एक नई इधर कैरियर कनेक्ट के नाम से एक शॉप है, इसकी वजह से मुझे सामान खरीदारी के लिए बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ता था, लेकिन CM पंजाब के सहूलत बाजार की वजह से बड़ी सहूलत हो गई है, जिसमें हमें होम डिलीवरी फ्री मिलती है और ये बड़ा अच्छा और एक कारगर निज़ाम। फ्री होम डिलीवरी सर्विस सहूलत बाजार के 5 किलोमीटर फासले तक दी जा रही है, जिसे आने वाले वक्त में मजीद बेहतर और मौसर बनाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा शहरी इस सहूलत से फायदा उठा सके। हसनैन बिन नसीर, PTV न्यूज़, खानेवाल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ज़िला बिहाड़ी में बेवा, मुतालिका और मुस्तहिक और देही ख़वातीन को माली इमदाद फराहम करने के लिए जानवर तकसीम किए गए। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब और पार्लिमानी सेक्रेटरी ने मुस्तहिक ख़वातीन में गाय और भैंसें तकसीम की। रिपोर्ट कर रहे हैं बहादुर हुसैन।
डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी खालिद जवेद गुराया की ज़ेर सदारत दही खवातीन को लाइफ स्टॉक असासाजात की मुंतकिली की फेज़ 2 के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद किया गया। जिला भर की 363 खवातीन में जानवर तकसीम किए गए, जिनमें तहसील विहाड़ी की 98, तहसील मेलसी की 128 और तहसील बूरेवाला की 136 खवातीन शामिल हैं। मजमूई तौर पर 8,869 दरखास्तें ऑनलाइन मसूल हुई। कुरानदाजी के बाद 363 खवातीन कामयाब हुई। इन जानवरों की मालियत 8 करोड़ रुपए है। मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो पंजाब में हर शोबा में जहाँ जहाँ पे भी मुश्किलात हैं वो उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए दिन रात कोशिश हैं। तो ये मोहतरमा मरियम नवाज साहबा का विजन है, गरीब लोगों की मदद करना, बेवा मतलका गरीब लोग, और ये एक गाय किसी को मिलेगी तो अगले साल 2 हो जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तरफ से जनूबी पंजाब के 12 अजला के लिए 11 अरब रुपए की रकम से जानवरों की तकसीम का सिलसिला जारी है। जानवरों की कुरानदाजी में मेरा नाम निकला है, जिसमें मुझे गाय मिली है। इससे ये है कि मैं अपना रोज़गार चला सकती हूँ। इसके लिए मैं मरियम नवाज का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे वैडी मिली है और उससे मैं अपना और अपने बच्चों का गुजारा करूँगी। मैं मरियम नवाज का बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये गाय दी है। जानवरों की तकसीम का मकसद इन खवातीन को बरसे रोजगार बनाना और इनके मुस्तकबिल को महफूज करना है। बेवा मुतलका और मुस्तहिक खवातीन ने जानवर मिलने पर वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा किया है। पंजाब हुकूमत के इस तरह के फलाही कामों को अवामी हलकों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। बहादुर हुसैन, PTV न्यूज़, विहाड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बेवा मुतल्लका और मुस्तहिक देही खवातीन को खुद कफील बनाने का अज़्म। इस सिलसिले में बुरेवाला में मुस्तहिक खवातीन में गाय और भैंसों की तकसीम के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तफसील बताएंगे मसूद आबद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हदायत पर महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से बुरेवाला में दही खवातीन में मजमूई तौर पर 137 गाय और भैंसें तकसीम करने की तकरीब मुनक़्क़द हुई। इस मौके पर खवातीन को 5,000 रुपए मालियत के लाइफ स्टॉक कार्ड भी दिए गए। DG लाइफ स्टॉक पंजाब डॉक्टर सैयद नूर बदर ने कहा, हमारी तमाम जो मौजूद खवातीन और बहनें तशरीफ लाई हैं उनके लिए एक ये बेहतरीन तोहफा है और खुद इन्हिसारी और मईशत की तेज रफ्तारी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम जो है वो तेजी से गामजन है। मैं मरियम नवाज का दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे बच्चों के लिए एक रोजी का वसीला बनाया है। मुझे जो गाय भैंस मिली है इससे मैं अच्छा पासा इसका ख्याल रखूंगी, चारा डालूंगी और इसकी करूंगी और उसके साथ अपने बच्चों का घर का रोजगार चलाऊंगी। तरक्की और खुशहाली पंजाब की हर खातून का हक है। लाइफ स्टॉक प्रोजेक्ट से दूध और गोश्त में इजाफे का हदफ पूरा होगा। मसूद आबद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बुरेवाला। यूनानी हुकूमत का यूनान भर में रजिस्ट्रेशन के बगैर मुख्तलिफ मसाजिद समेत दीगर इबादत गाहों को बंद करने का फैसला। इस फैसले से यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस के अलावा मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कई मसाजिद और इबादत गाहें बंद कर दी गई हैं। खिलाफ वर्जी करने पर भारी जुर्माने और सजा देने का फैसला भी हुआ है। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं यूनान से हमारे नुमाइंदा जफर साही। यूनान भर में मुख्तलिफ जो इबादत गाहें हैं उनको बंद करने का अंदिया जो वो दिया है। ये तमाम इबादत गाहें वो है जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल नहीं हुई या जिनके इजाजत नामे जो है वो हासिल नहीं किए गए, जिनमें बड़ी तादाद में मसाजिद भी है जो बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रही थी और इसके अलावा मुख्तलिफ चर्चेज और दूसरी इबादत गाहें गुरुद्वारे हैं जो कि जिनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अनकम्प्लीट है। आने वाले दिनों में भी ये सख्त कानून जो है ये लागू होने जा रहा है जिसमें अगर कोई भी ऐसी मस्जिद जो है वो इबादत के लिए या कोई भी दूसरी इबादत गाह जिसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो अभी मुकम्मल नहीं है उसको अगर कोई खोलेगा तो उसकी जो इंतजामिया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनको भारी जुर्माने जो है किए जाएंगे। यूनानी दारुल हुकूमत एथेंस में ऐसे कई मराकज़ हैं जो बगैर रजिस्ट्रेशन के मौजूद थे और उनको इस खबर के आने के बाद जो है वो बंद कर दिया गया, जिसके बाद लोगों को अपनी इबादत में सख्त मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। कराची में आतिशदगी के अफसोसनाक वाक़े बाद सरकारी और निजी स्कूलों में तलबा को सिविल डिफेंस की तरबियत फराहम करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसका मकसद बच्चों को किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल में खुद को महफूज रखने और दूसरों को मदद के काबिल बनाना है। देखते हैं सखर से मलिक इमरान शाहिद की रिपोर्ट। किसी भी मुमकिन हंगामी सूरत हाल में मौसर अंदाज में निमटने के लिए महकमा सिविल डिफेंस की जानिब से मुख्तलिफ स्कूलों और कारोबारी मराकज़ में आवाम को आगाही फराहम करने का सिलसिला जारी है। मॉडर्न स्कूल सखर में तलबा को हंगामी सूरत हाल में मौसर अंदाज में निमटने के लिए तरबियत फराहम की गई। इस मौके पर तलबा को किसी भी हंगामी सूरत हाल के दौरान
मरीजों को CPR और आग से बचाव की तरबियत फराहम की गई। ये इकदाम कराची में होने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद तलबा को तरबियत फराहम करने के लिए ज़िले हुकूमत की हिदायत पर शुरू किए गए हैं। तो ये फायर सेफ्टी के हवाले से हमारे सेशन चल रहे हैं ताकि हम तमाम जो ये तालिब इल्म हैं या ताजर बरादरी है उनको इसकी ट्रेनिंग दें ताकि हम सक्खर को सेव कर सकें। इन इकदामात को तलबा ने खुसूसी तौर पर सराहा है। ये सीखा कि किस तरीके से अगर हमारे घर पे कोई नुकसान हो जाता है या कुछ ऐसी आग लग जाती है तो उसके लिए हमारे जितने भी लेसनेबल उन्होंने हमें जो दिए कि कैसे हमने उनको कंट्रोल करना है, कैसे बुझाना है। यानी इसमें हमने सीखा कि जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, यानी कि अगर कोई कार्डियोवैस्कुलर है तो उसको CPR किस तरह से देना है, और अगर कहीं आग लग जाती है तो किस तरह से बंदों को रेस्क्यू करना है, किस तरह से लोगों की जान बचानी है। तो आज हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिली। हंगामी हालात में मौसर अंदाज में निमटने के लिए ये इकदाम खुसूसी तौर पर कारगर साबित होते हैं जो किसी बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। मलिक इमरान शाहिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सक्खर। और नाज़रीन, मुल्तान अंदरून शहर की कदीम गलियों में आज भी ऐसी सौगातें मौजूद हैं जो सकाफत, रिवायत और जायके के सफ़र को सदियों पीछे ले जाती हैं। उन्हीं में से एक है डोली रोटी, जो मुल्तान की पहचान है। रिपोर्ट कर रहे हैं फरहान मिर्जा। पाक गेट से मुंसलिक अलंग के तारीखी बाजार में डोली रोटी की कदीम दुकान पर रोजाना दूर दराज से लोग आते हैं। ये सिर्फ रोटी नहीं बल्कि सदियों पुरानी रिवायत, सकाफत और तवानाई का तोहफा है। कहा जाता है कि शादी के मौके पर दुल्हन की डोली के साथ ये रोटी भी रुखसत की जाती थी ताकि सफर के दौरान मेहमानों और अहले खाना की जियाफत हो सके, और यहीं से इसका नाम डोली रोटी पड़ गया। इसकी तारीख कबल मसीह की है। डोली रोटी की डोली रोटी सिर्फ मुल्तान में बनाई जाती है। मेवाजात और देसी मसालों की खुशबू से लबरेज ये रोटी निहारी, कोरमा या हत्ता के चाय के साथ भी खाई जाती है। हम जब भी यहाँ पे आते हैं इनकी डोली रोटी का माशाल्लाह इतना प्यारा सौगात है, इतनी अच्छी सौगात है, इतना अच्छा जायका है बड़ा कि खा के दिल खुश हो जाता है। मुल्तान अंदरून में खड़े हैं, ये यहाँ की डोली रोटी है जो बड़ी मशहूर है। 20 साल या 25 साल से तो हम इनके पास आके खा रहे हैं। हम खास तौर पे जो डोली रोटी है वो स्पेशली एक सफाई सुथराई के साथ इनके यहाँ बनती है, इस वजह से इनका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। मुल्तान की सौगातों में सोन हलवे के साथ साथ डोली रोटी भी एक जिंदा रिवायत है। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नाज़रीन, 1905 में तामीर होने वाली बन्नू की कदीम म्यूनसिपल लाइब्रेरी की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल हो गया है और जल्दी लाइब्रेरी को आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। बन्नू की ये कदीम लाइब्रेरी अंग्रेज़ दौर में मलका विक्टोरिया की याद में तामीर की गई थी। एक सदी तक ये लाइब्रेरी आवाम के लिए मुताले का अहम तरीन जरिया थी। कदीम और खस्ता हाल इमारत होने के बायस ज़िले इंतज़ामिया ने कुछ अर्सा कबल इसकी तामीर नौ का काम शुरू किया, जो कि तकमील के आखिरी मराहिल में है। नौआबादियाती दौर की फ़न तामीर की एक नादिर मिसाल होने की वजह से लाइब्रेरी की इमारत अपने तर्ज और डिज़ाइन में नुमाया है। 1974 में इसे पाकिस्तान नेशनल सेंटर के हवाले किया गया था, लेकिन बाद में दोबारा म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम आकर उसका नाम म्यूनसिपल पब्लिक लाइब्रेरी रख दिया गया। बन्नू के अवाम ने लाइब्रेरी की तामीर नौ पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि इससे अवाम को मुताले का बेहतरीन माहौल मुहैया हो सकेगा, जबकि तारीखी वर्से की हिफाजत भी होगी। नाज़रीन, खेल में खुश आमदीद। ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैचेस खेले जा रहे हैं। इवेंट के चौथे मैच में न्यूजीलैंड की अफगानिस्तान के 183 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी है। मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। चेन्नई में खेले जा रहे मैच में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 182 रन स्कोर किए। गुलबदीन नाइब ने 35 गेंदों पर 63 रन की इनिंग्स खेली। सिद्दीकुल्लाह अदल ने 29 और रहमानुल्लाह गुरबाज ने 27 रन बनाए। कीवी टीम की जानिब से लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट के 5वें मैच में इंग्लैंड और नेपाल की टीमें दिन 2:30 बजे से मुंबई में आमने सामने होंगी। शाम 6:30 बजे कोलंबो में श्रीलंका और आयरलैंड मद्दे मुकाबिल होंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स के खिलाफ जीत को फहीम अशरफ के जुड़वा बेटों के नाम कर दिया। मोहसिन नकवी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में फहीम अशरफ के जुड़वा बच्चों की तस्वीर अपलोड करते हुए लिखा कि नीदरलैंड्स की टीम बहुत अच्छा खेली, मैच खूबसूरत जुड़वा बच्चों के नाम करता हूँ। इन बच्चों की सेहतमंद और खुशियों भरी जिंदगी के लिए नेक ख्वाहिशात हैं।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया के दावों की तरदीद कर दी है। पीसीबी तर्जुमान के मुताबिक ये खबरें बेबुनियाद और झूठ पर मबनी है। तर्जुमान ने वाज़ेह किया है कि पीसीबी ने इस मामले पर आईसीसी से कोई राबिता नहीं किया और भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता का दावा मनगढ़ंत करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा कि वक्त आने पर सब वाज़ेह हो जाएगा कि असल में किसने किससे राबिता किया। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप सी के मैच में वेस्ट इंडीज ने रोमारियो शेफर्ड की शानदार हैट्रिक की बदौलत स्कॉटलैंड को 35 रन से हरा दिया। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया गया। ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेले गए मैच में वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों पर 182 रन बनाए। शैमरॉन हेटमायर ने 36 गेंदों पर 64 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। ब्रैंडन किंग ने 35 रन स्कोर किए। हदफ के ताक़ुब में स्कॉटलैंड की टीम 19वें ओवर में 147 रन पर ढेर हो गई। कप्तान रिची बैरिंगटन ने 42 रन बनाए। वेस्ट इंडीज की जानिब से रोमारियो शेफर्ड ने हैट्रिक की। उन्होंने 3 ओवर में 20 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को आउट किया। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप ए के मैच में भारत ने अमेरिका को 29 रन से हरा दिया। मुंबई में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 9 विकेटों पर 161 रन बनाए। कप्तान सूर्या कुमार यादव ने 49 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त 84 रन स्कोर किए। अमेरिका की जानिब से श्वेडले ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में अमेरिका की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों पर 132 रन ही बना सकी। संजय कृष्णा मूर्ति और शिवम रंजाने ने 37 रन बनाए। भारत की जानिब से मोहम्मद सिराज ने 3 जबकि अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल ने 2-2 खिलाड़ियों को पैवेलियन की राह दिखाई। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त सिखाए जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का बड़ा फैसला। पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलेगा लेकिन भारत के साथ मैच का बायकॉट किया जाएगा। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी और कराची के अवाम ने हुकूमत के इस फैसले की पुरजोर हिमायत की है। गवर्नर सिंध और अवामी तासुरात के हवाले से जानते हैं कराची से सैयद जहांगीर अली की ये रिपोर्ट। क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान बा मुकाबला भारत की सियासत के नजर हो गया। पाकिस्तानी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि खेल को सियासत से अलग होना चाहिए। ताहम भारत की जानिब से मुसलसल गैर दोस्ताना रवैये और खेल के मैदान में सियासत लाने के बाइस पाकिस्तान ने ये कदम उठाया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि भारत के खिलाफ मैच न खेलना हुकूमत का असूली फैसला है। पाकिस्तान ने जो असूली फैसला किया है कि वो भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा, मैं समझता हूँ कि पूरी पाकिस्तानी कौम इसकी तायीद कर रही है और हम सब अपने हुकूमत के गवर्नमेंट के इस फैसले के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने हमेशा खेल को और सियासत को अलहदा रखा है, लेकिन दुनिया ने देखा कि भारत ने खेल में भी जो है वो सियासत को अपनाया, जिसकी मिसाल आपको मिलती है कि जब हमारे चेयरमैन के हाथ से ट्रॉफ़ी दिलवाने की बात आई तो उनकी कैप्टन ने उसको ना किया। कराची के शहरियों ने पाकिस्तान के फैसले को सराहते हुए कहा है कि कौमी वक़ार और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए, जबकि पाकिस्तानी कौम बांग्लादेश के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत करती है। सियासत को लाते हैं खेल के अंदर, तो जैसे BCCI है वो असल में ICC जो वो है तो BCCI चला रहा है सब कुछ, तो बांग्लादेश के साथ नाजायज़ हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच ना खेलने के जो फैसला लिया है वो बहुत ही अच्छा इकदाम है। हम स्पोर्टमैन स्पिरिट दिखा रहे हैं उनको, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं। तो एक लिमिट होती है हर चीज़ की। आप गैर अखलाकी चीज़ों को मैदान में लेके आ रहे हो, स्पोर्ट्स की फील्ड में लेके आ रहे हो। जो क्रिकेट के अंदर जो इस वक्त जो सियासत स्टार्ट हुई है उसके हवाले से पाकिस्तान का ये फैसला बहुत खुशाइंद है। मेरी नज़र में पाकिस्तान का फैसला बहुत ही पॉजिटिव फैसला है। पाकिस्तानी अवाम की बड़ी तादाद हुकूमत के साथ खड़ी नजर आ रही है। शहर कायद की अवाम ने भी हुकूमत के इस फैसले को सराहते हुए कहा है कि कौमी वक़ार और खुददारी पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सैयद जहांगीर अली, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। नाजरीन, खेल की खबरें जारी हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि पाकिस्तान सुपर लीग में शामिल होने वाली नई टीम हैदराबाद का नाम और लोगो जारी कर दिया गया। हैदराबाद में PSL की नई फ्रेंचाइज की तकरीबी रोनुमाई हुई, जिसमें
حیدرآباد فرنچائز کا نام اور لوگو متعارف کرایا گیا۔ فرنچائز کا نام حیدرآباد ہیوسٹن کنگزمین رکھا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں حیدرآباد ہیوسٹن کنگزمین کا لوگو بھی متعارف کرایا گیا ہے۔ اور پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ پہنچ گئی۔ قومی خواتین ٹیم کراچی سے براستہ دبئی جوہانسبرگ پہنچی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 T20 اور 3 ون ڈے میچز کھیلے جائیں گے۔ سیریز کا آغاز 10 فروری کو T20 میچ سے ہوگا۔ پاکستان نے سینیگال کے خلاف ڈیوس کپ مقابلہ 5-0 سے اپنے نام کر لیا۔ دوسرے روز پاکستان نے ڈبلز اور ریورس سنگلز میں فتح سمیٹی۔ رپورٹ کریں گے نثار مہدی۔ سینیگال کے خلاف ڈیوس کپ ورلڈ گروپ 2 پلے آف 5-0 سے پاکستان کے نام رہا۔ پہلے روز سنگلز مقابلے جیتنے کے بعد پاکستان نے شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ڈبلز اور ریورس سنگلز میں بھی کامیابی سمیٹی۔ ڈبلز مقابلے میں پاکستان نے سینیگال کو اسٹریٹ سیٹس میں 7-6 اور 7-6 سے شکست دے کر ٹائی اپنے نام کر لیا۔ پاکستانی جوڑی اسام الحق اور مزمل مرتضیٰ پر مشتمل تھی۔ سینیگال کی جانب سے سیدینا آندرے اور نکولس جاون میدان میں اترے تھے۔ We've been working with the special strength and conditioning trainer, we've been working with the psychologist. سارے کے سارے جو میرے سینئر کوچز ہیں، خالد بھائی ہیں، موصف ضیاء ہے، شداد خان ہے، رشید بھائی ایز کیپٹن، سب کو انوالو کیا ہے۔ پوری فیڈریشن I think from سیکٹری صاحب سے لے کر نیچے مینجمنٹ تک I think everybody has kept them involved and بڑی پازیٹیو مجھے جو نا فیلنگ آتی رہی۔ پہلے ریورس سنگلز میں سینیگال کے یانگ لین گینا مقابلے کے لیے دستیاب نہیں تھے، جس کے باعث مزمل مرتضیٰ کو واک اوور مل گیا۔ دوسرے ریورس سنگل میں محمد شعیب نے نکولس جاون کو 7-5 اور 6-2 سے ہرا کر پاکستان کو 5-0 سے کامیابی دلا دی۔ نثار مہدی، پاکستان ٹیلی ویژن۔ اور ناظرین، پرو ہاکی لیگ کے دوسرے مرحلے میں شرکت کے لیے پاکستان آسٹریلیا میں موجود پاکستان ہاکی ٹیم نے اپنی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ٹیم نے ٹورنامنٹ سے قبل پریکٹس سیشن کیا۔ کھلاڑی فزیکل فٹنس پر توجہ دیتے ہوئے رننگ کرتے نظر آئے۔ پرو ہاکی لیگ کا دوسرا راؤنڈ 10 سے 14 فروری تک ہوبارٹ میں ہوگا۔ پہلے میچ میں پاکستان کا مقابلہ میزبان ملک آسٹریلیا سے ہوگا۔ 11 فروری کو پاکستان ہاکی ٹیم جرمنی سے ٹکرائے گی۔ 13 فروری کو پاکستان کا مقابلہ ایک مرتبہ پھر آسٹریلیا سے ہوگا، جبکہ 14 فروری کو پاکستان اور جرمنی کے درمیان ایک اور مقابلہ ہوگا۔ ناظرین، پاکستان کے نامور نوجوان کوہ پیما شاہ دولت شمشالی خیبر گوجال میں آئس کلائمبنگ کے دوران افسوسناک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ شاہ دولت آئس کلائمبنگ کے دوران پھسل کر گہری کھائی میں جا گرے اور موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے۔ شاہ دولت کا شمار پاکستان کے باصلاحیت اور ابھرتے ہوئے ہائی آلٹیٹیوڈ کوہ پیماؤں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے K2، نانگا پربت، شربم 1 اور شربم 2 سمیت متعدد بلند اور خطرناک چوٹیوں کو سر کر کے قومی اور بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا۔ اسپینش فٹ بال لیگ لا لیگا میں ریال سوسییڈاد نے ایلچا کو مات دے دی۔ سان سیباسٹین میں کھیلے گئے میچ میں ریال سوسییڈاد نے 1 کے مقابلے میں 3 گول سے کامیابی سمیٹی۔ فاتح ٹیم کی طرف سے لوکا سوچچ، مائیکل اور اوری ایسٹن نے 1 گول داغا۔ ایلچا کی جانب سے واحد گول آندرے سلوا نے کیا۔ ناظرین، کھیل سے فی الوقت اتنا ہی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں کاشف اور ہما کی جانب۔ شکریہ سبھی ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔ درست ہر وقت بر وقت